بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چار بڑی عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو آج تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اس کے اندر شہباز شریف اور پوری حکومت کو چارج شیٹ کر دیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس طلب کر لیا گیا اور اس اجلاس کو جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے ساتھ بھی جوڑنے کی کچھ خبریں ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ موٹر وے پر بھیرا کے مقام پر ایک گاڑی سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس کہانی کے اندر کیا نیا موڑ آیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سندھ حکومت اور کبھی پنجاب حکومت یہ نعرے بلند کرتی ہے، لیکن 24 سال کے اندر ان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کتنے آپریشنز ہوئے ہیں اور کتنی اس کے اندر لاگت آئی ہے، اور یہ کتنا علاقہ ہے جو اس وقت قابو کے اندر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے بھی آج ایک عام رپورٹ آئی ہے جس میں بڑا انکشاف کیا گیا۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سماعت کریں گے، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھی جا سکے۔ اچھا، موٹر وے پر جو ہے وہ کل کی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ بھیرا کے مقام پر جو ہے ایک گاڑی سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہے۔ اب یہ واقعہ بڑا ایک پراسرار واقعہ ہے۔ موٹر وے ہے، جی ٹی روڈ ہو تو بندہ کہے کہ کسی نے گاڑی کھڑی کی اور وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ اب موٹر وے کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریولر تھے، یہاں پہ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اچانک جب وہ صحیح جا رہے تھے اور وہ بھی لاہور اور اسلام آباد کے درمیان میں بھیرا کے مقام پر، تو اس کو کیا ہوا؟ اب یہاں پہ خبر یہ ہے، اب جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ موٹر وے پر یہ جو کھڑی گاڑی سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، یہ ایک ہی خاندان کی 2 خواتین اور 2 بچے پراسرار طور پر جاں بحق ہوئے۔ ایک نوجوان بے ہوش موٹر وے پولیس کو ملا ہے، اور ایک کار کافی دیر سے کھڑی تھی اور ریسکیو 1122 کو کال کی گئی۔ شیشہ توڑ کر مسافروں کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، لیکن 4 افراد اس کے اندر جاں بحق نہیں ہو سکے۔ ایک نوجوان زیر علاج ہے، اور اس نے جو کچھ بتایا ہے، یہ آپ پورا سسٹم آپ دیکھیں، یعنی باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں۔ نوجوان جو ہے اس نے بتایا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ راستے میں ایک ریسٹ ایریا سے بیکری سے جو ہے وہ پیسٹریز یا جوس وغیرہ انہوں نے لے کر کھائے تھے، اور ڈاکٹرز کا بھی یہ گمان ہے، وہ لکھتے ہیں خبر یہ ہے کہ افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار لگتے ہیں۔ گاڑی سے ملنے والے جوس کے خالی ڈبے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زائد المیعاد تھے۔ اب یہ حالات ہیں جی، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، صحت سے کھیلنا۔ یہ جتنے ہم نے ادارے پالے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے ان کی کارکردگی، یعنی عام آدمی تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جیسے کل ایک کراچی کی وہ باپ اور بیٹی کو کچلنے والی نتاشا نے جب وکٹری کا نشان بنا کے، یعنی وہ جیسے ایک مرتبہ ایک پولیس کانسٹیبل کوئٹہ کے اندر جس کو گاڑی نے کچلا تھا، اور اس وقت سی سی پی او لاہور تھے، اور ان کی بات پہ بڑا اس وقت غصہ لوگوں کو آیا، چونکہ اور غصے ہوتے ہیں۔ جو اس وقت جو ہے وہ سی سی پی او لاہور تھے، آپ کو علم ہے، شیخ صاحب۔ اب شیخ صاحب نے کہا تھا کہ جس دن اس گاڑی نے کچلا تھا کانسٹیبل کو اس طرح، تو ریاست اس دن مر گئی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جس طرح نتاشا نے وکٹری کا نشان یعنی کیا ہے، پوری پاکستانی قوم کو اس نے تماچا مارا ہے، اور اب یہ حالات ہیں، ہر محکمے کے یہ حالات ہیں۔ چیکنگ کوئی نہیں ہے، زائد المیعاد چیزیں ہیں، 2 نمبر چیزیں وہاں پہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی چیک کرنے والا بس رشوت ملنی چاہیے اور معاملات چلنے چاہیے۔ تو اب اس کے اندر بغیر انہوں نے جو کچھ وہاں سے ریسٹ ایریا سے لے کر کھایا ہے، اس کا یہ اثر ہوا ہے اچانک، اور وہ سارے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اب کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ وہ کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی افسوسناک قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کچے کے ڈاکوؤں کا آپریشن ہے، یہ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ مختلف مواقعوں پہ چلتے رہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو خبر ہے، وہ خبر آج روزنامہ دنیا نے دی ہے، اس کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے یہ بڑی عام مدثر حسین کی یہ رپورٹ ہے۔ یہ ابھی دعوے کریں گے 4 دن خبروں کے اندر ہائپ ملے گی،
इनाम रख दिए हैं, कैटेगरी ए के डाकू, कैटेगरी बी के डाकू। अब यहां पे खबर यह है कि कच्चे के ऑपरेशन गुज़श्ता 24 साल से जारी हैं और इस 20 किलोमीटर की पट्टी पर पुलिस अब तक 52 छोटे बड़े ऑपरेशन कर चुकी है। 20 किलोमीटर की यह पट्टी है जहां पे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की ये जो सरहदी एक पट्टी है, ये क्या कहते हैं, रिपोर्ट ये है कि ये 52 छोटे बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं जिन पर रियासत पाकिस्तान का 11 अरब 53 करोड़ की लागत आ चुकी है। इन ऑपरेशंस के दौरान 34 पुलिस अफसर और एहलकार शहीद हुए जबकि 43 जख्मी हुए हैं। इन कार्रवाइयों में 69 डाकू हलाक हुए हैं और 56 जख्मी हुए हैं। तफसीलात ये बता रही हैं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हदूद की दरमियानी पट्टी, जिसका कुल रकबा तकरीबन 20 किलोमीटर है और ये रहीम यार खान राजनपुर के इलाकों से जुड़ती है, यहाँ पर सरकारी जमीनें और कुछ जजीरा नुमा पॉकेट्स बनी हुई हैं जहां कई अशरों से डाकू राज कायम है। 2002 से अब तक 52 छोटे बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और 2016 में छोटू गैंग ने SHO समेत 22 अफराद को यरकमाल बना दिया था। लेकिन ये जो अभी हालिया ये हमला हुआ है, ये इस तारीख का पुलिस पर सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। और अब ये बता रहे हैं छोटू गैंग ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तारी दी थी और इसके अंदर ये शर गैंग है, कोश गैंग है, ये फिर जो है वो इसके अंदर लंडा गैंग है, लुंडा, इमरानी गैंग है, दश्ती गैंग है, यानी कितने पुलिस एहलकारों पर हालिया दहशतगर्दी भी शर गैंग और कोश गैंग ने की है। तो देखते हैं ये यानी यही पुलिस है। पाकिस्तानी अवाम जो निहत्ते लोग हैं उन पे तो चढ़ दौड़ती है, लेकिन यहाँ पे और फिर ये भी है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पिछली हुकूमतें भी और वो शहबाज शरीफ की रही है, दरमियान में बुजदार रहा है, दरमियान में अभी मरियम नवाज आई है, उनकी गाड़ी वहां फंसी है। क्या गाड़ी नकारा थी? ये किस तरह का असला दिया गया है, किस तरह की गाड़ियां हैं, किस तरह वो चलाते हैं, ये चीजें भी तहकीक तलब है। अच्छा, दूसरा आज जो है वो पार्लियामेंट का कल इजलास तलब कर लिया गया मंडे और ट्यूसडे को, दोनों ऐवानों का। और ये दोनों ऐवानों का जो इजलास है इसके अंदर ये यानी तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस वक्त दो ऑप्शन ज़ेरे गौर है। कल इमरान खान ने इस पर इशारा भी किया है, एक तो ये कि ये काजी साहब को एक्सटेंशन देंगे तो लिहाजा इनका मसला ही हल होगा, क्योंकि जितनी खिदमत उन्होंने की है इससे बेहतर खिदमत शायद कोई ना कर सके। जिस तरह उन्होंने बल्ले का निशान छीनने से लेके जो चाहिए था, नून लीग को जो चाहिए था वो इस पिछले अरसे के अंदर उनको मिला है और अभी तक मिल रहा है। अच्छा, अब काजी साहब रहेंगे तो नून लीग की बका है इसके अंदर, वरना वो वेंटिलेटर पे हैं। जब भी फार्म 45 खुलेगा तो समझे उनकी जान गई, यानी सियासी जान। अब यहाँ पे जो है वो दोनों ऐवान यानी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर दिए गए और जराए ये दावा कर रहे हैं कि इसके अंदर किसी भी लम्हे, चूंकि इजलास एक दिन का तो नहीं होता, वो चलता रहेगा और उसके अंदर TADA भी बनते हैं, ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। एक दिन 2 दिन चलाया, फिर अगले दिन 2 घंटे चलाया, यानी 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे वो चलता रहता है। तो दरमियान के अंदर ये बिल आ सकता है जिसके अंदर एक ऑप्शन तो ये है कि काजी साहब की एक्सटेंशन हो, एक ये कि पूरा जुडिशियल पैकेज कुछ उसके साथ उस पैकेज में अच्छी चीजें शामिल कर दी जाएं और वो कहा जाए कि इस तरह इतने जजेस की असामियां फिल होनी चाहिए, ऐसे इंसाफ का निज़ाम हो, ये वो कहानियां डाल के तो उसको एक पैकेज की शक्ल दे दी जाए, या तमाम जो जजेस हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर तोसी हो जाए कि भाई आपको क्या परेशानी है, आपकी तो भी तो बढ़ गई है। तो इस तरह का एक पैकेज आ सकता है। लेकिन सवाल ये है जो इमरान खान ने कहा कि दोनों सूरतों के अंदर हम मज़ामत करेंगे, एहतजाज करेंगे, नहीं मानेंगे, चूंकि जो एक हुकूमत ही यानी एक फार्म 47 के तहत काबज ग्रुप जिसको कहा जाता है खाऊ कबाइल का, वो है तो उसका क्या स्टेटस है, वो किस तरह तरमीम कर सकती है, उसका अपनी मॉरल और कानूनी कोई हैसियत नहीं है। तो ये है बुनियादी सवाल। इससे मजीद मेरा ख्याल है मामलात खराबी की तरफ जाएंगे अगर ऐसा हुआ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी आ जाएंगे तो हमें तो बहुत कुछ चीजें होती हैं, वो शायद कादी साहब से भी 4 कदम आगे जाएं। जो अभी हम तवक्कुआत बना के बैठे हैं, ये तवक्कुआत हमारी धड़ाम गिर जाएं। ये भी बड़े बाखबर लोगों की इस हवाले से जो है वो मालूमात है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो कल अजहर मिशवानी के जो भाई अगवा हुए,
उस मामले के अंदर समाअत हुई है और समाअत के अंदर आईजी इस्लामाबाद को रिजवान जो है जो पीटीआई का सोशल मीडिया यानी कोऑर्डिनेटर था फॉरेन अफेयर्स का, तो एक तो ये पेशरफ्त हुई है कि एक अता उर रहमान लड़का है वो उसको उठाया गया था, आपको इल्म है, वो घर पहुंच गए, वो भी वापस आ गए और कल के आर्डर के बाद ये पेशरफ्त आई है चूंकि वो दूसरे मुतल्लक था। और दूसरी ये बड़ी खबर है कि पीटीआई के मीडिया कोऑर्डिनेटर मलक रिजवान और उनके भाई वो भी वापस खैरियत से घर पहुंचा दिए गए हैं। फैजान मलक भी पहुंच गए और पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुगवियों की वापसी का बताया गया है। अब वो यानी एक तो कल चूंकि आईजी इस्लामाबाद को इस केस के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तलब किया था कि आईजी आए और बताए और कुछ शर्म खाएं। अब वो बड़े आम उनके रिमार्क थे और उसका ये असर हुआ है कि कम से कम आज वो बंदा जो है वो पुलिस वालों ने कहा होगा जो अगवाकार हैं कि यार मेहरबानी करें, ये मामलात खराब हो जाएंगे थोड़ा, अब आपने क्या निकालना है। तो अगवाकार, जब अगवाकार और पुलिस एक हो जाए तो आप अंदाजा करें अवाम जो है वो कहाँ जाएगी। बदैर ऐसे लगता है, मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है इसके अंदर जो आर्डर दिया गया था उस आर्डर के अंदर मैंने आपको बताया था कल भी कि जो इस वक्त बताया गया है जज साहब की तरफ से तो वो चार्जशीट किया गया और आज बाकायदा उस रिटर्न आर्डर के अंदर जो है वो बताया गया है कि ये हुकूमत को ऐसी बात उन्होंने की है कि जिसका माना यह है कि वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने वाले शख्स थोड़ी सी शर्म कर लो। यानी ये क्या हो रहा है, लोग अगवा हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो 6 जून से लापता आदर मिशवानी के भाइयों का कुछ मालूम नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दिया है। अदालत को उम्मीद नहीं यहां तक इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। यानी आप अंदाजा करें इतनी मायूसी का इजहार किया गया है, ये शर्म दिलाने की बात की गई है बुनियादी तौर पर। ये एक चार्जशीट है इस पूरी हुकूमत, वफाकी kabina और इस शहबाज शरीफ पर, और कहा है कि यानी अदालत को उम्मीद नहीं यहां तक कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। फ्रीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। ये कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने द लॉर्ड एडिशनल अटॉर्नी जनरल सबमिटेड दैट द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान is expected to meet with the Prime Minister on the matter. Given the lackluster response, this could have last hope that even the chief executive of the country would care to give attention to this case. यानी आप अंदाजा करें, यानी ये थप्पड़ मारने वाली बात है अगर थोड़ा सा समझा जाए कि एक जज की कुर्सी पे बैठा हुआ जो शख्स है वो बता रहा है। और हमें, मैं जानता हूं, यानी हम देखते हैं कार्रवाई के अंदर, कल मैं मौजूद था इस पूरे केस के अंदर कि किस तरह वो अब सोच रहे थे। हालांकि डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि सर एक केस के अंदर हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ था तो उस वक्त का जो वजीर आजम है उसको नाअहल करार दे दिया गया था, तो आपको इस शहबाज शरीफ को तलब करना चाहिए। तो उन्होंने बगैर मौका दिया, आगे उनकी छुट्टियां थी और लार्जर बेंच की तरफ ये मामला रेफर किया है। तो ये जो आर्डर है, और फिर ये भी डॉक्टर बाबर अवान ने जो बात की थी वो मैं समझता हूं इसके अंदर आ गई है। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, ये अमल नहीं करते, लेकिन ये तारीख का हिस्सा होती हैं चीजें और किसी न किसी जगह कौम को फायदा देती हैं। तो ये झंझोड़ा है, ये लेवल है इस हुकूमत का, ना कोई लीगल हैसियत है ना कोई मॉरल अथॉरिटी है, बस एक कब्जा किस्म का ग्रुप बैठा हुआ है। तो देखते हैं, भारत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।